In this particular video, we are going to discuss about graphs. Graphs is one of the most important data structures present. Through graph, we have different algorithms which we use. Let's talk that what is a graph and what we are going to discuss in this particular video. What is a graph? We call graph as collection of vertices which are connected through some edges. That is what a graph is. We have some vertices and we have some edges. There are many real life examples of a graph. हम लोग सबको डिस्कस करेंगे. No worries. Let's first discuss using a particular theory what is a graph. You will see here it is written that a graph is a data structure, is a collection of nodes that have data and are connected with other nodes. So graph is a data structure which has a node, which has a collection of node where each node has a data and each node is connected to other nodes. So if you will remember, we have learned about linked list. In linked list, what was there? In a linked list, there was a node. If we talk about linked list, there was a node. Let's say it has a data of, let's say, 5. So that node is connected to another node which has its own data, then another node, another node. This is what a linked list is. A similar thing is done in graphs also. But in graph, the number of connected components, the number of connected nodes are not fixed, is not one. There can be any number of connected nodes. Just like if this is a given node, so this node can be connected to another node, to another node, to a third node. Maybe these two are connected with each other. Maybe there is a third node also. Let's give it a number 1, 2, 3, 4, 5. So you can see that we have created a graph. This is a graph. And this graph consists of 5 vertices. You can see how many vertices are there. There are 5 vertices, which is nothing but 1, 2, 3, 4, 5. They are the vertices of the graph. And how many edges are there? How many edges are there? So you can see first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. 7 edges are there. How we represent an edge? A edge can be represented as the vertices it is joining. You can see that the edges are 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1. Then we have 1, 3, 5, 3. These are the edges that we have here. So this is how we represent edges in a graph. भाई वो किस किस वर्टिसेस को जोड़ रहा है और वर्टिसेस कितनी है? ये जो नोड्स होते हैं ये वर्टिसेस होते हैं. तो हमारे पास अभी 5 वर्टिसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 7 नोड्स हैं. 7 नोड्स आर प्रेजेंट एंड 5 वर्टिसेस प्रेजेंट है यहाँ पे. ओके, ये सारा होता है यहाँ पर केस. ठीक है, अब एजेस देखो. देयर आर 7 एजेस प्रेजेंट है. 1, 2, 2, 3, 3 से 4, 4, 5, 5, 1, then 1, 3 and 5, 3. इस तरीके से हमारे पास 7 edges present है. There are 7 edges present. This is a graph. Okay. They have written, let's understand a graph using example on Facebook. So let's take an example. So let's take an example first of a map of your city. So let's take map of your city. So it will be like there's first home, there is second house, there is third house, there is fourth house, there is fifth house. We represent that there is a path between first to second house. There's a path between this. दिस इज व्हाट मैप इज. आप सबने गूगल मैप यूज किया होगा. गूगल मैप में क्या होता है? यही तो होता है कि एक अलग अलग लोकेशंस होती हैं और उन लोकेशंस के बीच में रास्ता होता है. दिस एजेस आर द पाथ, वो रास्ते हैं, और जो नोड्स हैं वो लोकेशंस हैं. ओके, इट इज एग्जांपल. सिमिलरली लेट्स से
फेसबुक, अब आप बोलेंगे फेसबुक में कैसे आता है ग्राफ? आता है, लेट्स सी। लेट्स से आप, ये आपकी प्रोफाइल है, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, आपके कुछ फेसबुक में फ्रेंड्स होंगे, वो आपसे कनेक्टेड है ना, दे ऑल आर कनेक्टेड टू यू, ऑल योर फेस, दिस इज योर प्रोफाइल, दीज आर योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स आर कनेक्टेड टू यू। ये कितने भी हो सकते हैं, बहुत बहुत फ्रेंड्स होते हैं, जितने फ्रेंड्स उतने नोट्स, उतने एजेस आपके थ्रू, एंड आपके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स होंगे। तो ये क्या हुआ? हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे डायरेक्ट कनेक्शन भी जा रहा हो, ऐसे करके जा रहा हो, कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो उनके भी फ्रेंड है, आपके भी फ्रेंड है। ये क्या हुआ? ये एज ग्राफ हुआ ना, ग्राफ हुआ, ठीक। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली गो ऑन, राइट, ग्रेट। अब देखते हैं अगला। हाँ, तो देखो इन्होंने नहीं बोला है दैट graph is a data structure which is consist of two things. The first is collection of vertices v। तो ग्राफ में क्या होता है, वर्टिसेस का कलेक्शन होता है बहुत सारा, भाई अलग अलग वर्टिसेस मिला के क्या होता है, ग्राफ बन जाता है। A collection of edges e represented as ordered pair of vertices। तो देखो, अब इसमें क्या है कि a collection of edges e represented as a ordered pair of vertices। तो ये ordered pair क्या है, इसका हम लोग बात करेंगे। और एजेस क्या होता है, दो वर्टिसेस के बीच में अगर कनेक्शन है, दैट इज व्हाट एजेस है। तो अगर मैं हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो हम लोग एज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एज अ कलेक्शन ऑफ एजेस हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यू विल सी है कि इन्होंने इस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था ऊपर वाले ग्राफ को। इस ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट किया था कि भाई इस ग्राफ में कितनी वर्टिसेस हैं, इस ग्राफ में हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, और हमारे पास एजेस कितनी है, हमारे पास 7 एजेस हैं। हमने लिख दिया था कि वर्टिसेस आर 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5। और एजेस कौन कौन सी हैं, 1 से 2 के बीच में एक एज है, 2 से 3 के बीच में एक एज है, 3 से 4 के बीच में एक एज है, 4 से 5 के बीच में एक एज है, 5 से 1 के बीच में भी एक एज है, ठीक है। फिर 1 से 3 के बीच में एक है, और 5 से 3 के बीच में एक है। अब उसका कोई नंबरिंग कोई मैटर नहीं करती कि आपने जिस नंबर में लिखा उस नंबर, आप कोई भी कैसे भी लिखो। देखो ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि ये जो आगे पीछे लिखा है, इसको मैं 3,5 भी लिख सकता था, 5,3 भी लिख सकता हूँ, पर कब क्या लिखेंगे ये समझते हैं। 3,5 लिखें, 5,3 लिखें, कैसे लिखें, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग एक अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, इतना इतना क्लियर होगा, विच इज डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले ग्राफ का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ। ये ग्राफ आ गया हमारे पास, ये पहला ग्राफ। तो अब इस ग्राफ में देखो एक चीज, ठीक, आप कर लेते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है, और इस सेम ग्राफ का हम लोग एक और ले लेते हैं यहाँ। तो अभी आप देखोगे तो ये जो है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, सॉरी ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब देखो ये अनडायरेक्टेड कैसे है, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड के बीच में एक ही डिफरेंस होता है, विच इज कि डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो एजेस हैं उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, गेटिंग। अब आपने देखा होगा कि एक जो रोड होती है, एक वन वे होता है, एक टू वे होता है। टू वे क्या होता है कि आप उस तरफ से इधर भी आ सकते हैं, आप यहाँ से उधर भी जा सकते हैं। टू वे रोड होती है ना, दोनों तरफ लोग चलते हैं, है ना, लेफ्ट साइड भी लोग चलते हैं, राइट साइड भी लोग चलते हैं, ये होती है टू वे रोड। एक होती है वन वे, बोलते हैं ना भाई ये वन वे है, वन वे मीन्स आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, अपोजिट नहीं आ सकते हैं, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं। यही होता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड, ठीक है। तो हम समझते हैं एग्जैक्टली ये डिफरेंस होता क्या है, ठीक। तो जैसे हमारे पास ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो पहले समझते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो हमने जो भी पढ़ा ना वो था अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब देखो ये जो ग्राफ है इसमें एजेस बनी हुई है, एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब डायरेक्शन नहीं का मतलब क्या है कि कोई बंदा 0 से 3 भी आ सकता है, और 3 से 0 भी आ सकता है, समझ रहे हो, दोनों तरफ मूव कर सकता है। अगर दो वर्टिसेस के बीच में ग्राफ है, देयर इज अ
there is a edge between two vertices. That means we can travel between both the vertices, or we can move between both the vertices without having any direction. We can either move from 3 to 0 also, we can either move from 0 to 3 also. Both the cases are. If I will write uh, the position for it, so it will be for undirected graph, okay? And we should know actually before writing its representation that what type of graph if it is, okay? So it is like the vertices are 0, 1, 2, 3. And if I will write the edge will be, first edge is between, let's say, 0 and 1. Then there is an edge between 1 and 2. Then 2 and 0. Then 0 and 3. So there are 4 edges basically इस ग्राफ में. 4 वर्टिसेस और 4 एजेस भी हैं, ठीक है? तो ये तो ठीक है, ये फाइन है, ठीक. अब देखो एक चीज कि ये v हो गया 0, 1, 2, 3 और एजेस हो गए 0, 1, 1, 2, 2, 0 और 0, 3, ठीक. तो ये हम लोगों ने समझ लिया, इतना हो गया. तो ये हमारे पास क्या था, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ था. तो अनडायरेक्टेड मीन्स क्या था कि आप जो एजेस है, अगर मैंने 0, 1 लिखा है तो कोई बंदा 0 से 1 भी जा सकता है, 1 से 0 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं. तो हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं इसको. मैं 0, 1 लिख दूं या फिर 1, 0 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, बिकॉज इट इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ. And what a directed graph is. What is a directed graph? Let's talk about it. Okay. So now, for directed graph, what we can do is, here are the same vertices, but for each edge, we have to also give its direction. And what is the direction of our edge? This is what we will also give. So let's say this is the direction. Now you will see there is an arrow. Now you will see there is an arrow this graph in these edges. हर एज का एक डायरेक्शन है. यू विल सी, आप देखोगे इस एज को, अगर आप देखोगे फ्रॉम 0 to 3, तो इस 0 से 3 वाली जो एज है इसमें एक एरो है टुवर्ड्स 3. दैट मीन्स यू कैन ओनली मूव फ्रॉम 2 to 3. यू कैन नॉट कम फ्रॉम 3 to 2. ये डायरेक्टेड हो गया. दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ. दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ एज, देयर इज अ एरो each place. Getting or not? This is what we have. And if I will write here the implementation of it, so how it will be? So it will be, vertices will be first. So the vertices will be same. Vertices तो वही होंगी, डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो, कुछ भी हो. बट एजेस विल बी चेंज. अब देखो एजेस कैसे चेंज, जहां से जहां ग्राफ जा रहा है. इफ ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम 0 to 2, तो हम लिखेंगे 0,3. अगर 3 से 0 जा रहा है तो 3,0. So first you can see that the graph is going from 0 to 3. So it will be 0,3. Now we can't write 0,2. नहीं, 0,2 हम लोग नहीं ले सकते हैं, 2,0 लिखेंगे, समझे? उसके बाद 0,1, उसके बाद 1,2 नहीं, 2,1, बिकॉज 2 से 1 जा रहे हैं. ओके, दिस इज हाउ एजेस आर रिटन. इसके आपस में हो सकते हैं चेंज, हो सकता है आप इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, वो हो सकता है. बट जो ऑर्डरिंग है पेयर की, पेयर शुड बी ऑर्डर. जो पेयर है आपस में, ये जैसे लिखे वैसे ही होना चाहिए. मतलब पहला नंबर होना चाहिए जहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरा होना चाहिए जहां पे जाके एंड हो रही है. This is the difference between a directed and a undirected, a directed and a undirected graph, and it is a very important topic of graph. Okay, आपका जो ग्राफ है वो इसी सब के अराउंड रिवॉल्व करेगा. Okay, great guys, great. So now let's move forward. अगला देखते हैं क्या है. So now graph terminology.
तो व्हाट इज अ ग्राफ टर्मिनोलॉजी? टर्मिनोलॉजी मीन्स कि क्या क्या हम लोग ऑपरेशंस करते हैं ग्राफ में, हाउ अ ग्राफ डिफाइन, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्राफ आर डिफाइंड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ अ ग्राफ. First is adjacent. So what is meant by adjacent nodes? What is meant by adjacent vertices? Let's see this. So a vertex is called as adjacent if, मतलब a vertices means two vertices, actually, not vertex, two vertices are called adjacent to each other if there is a edge between them. If there is an edge between them. Let's understand this with the help of an example which is given above. So let's have this example. ठीक है, तो अब इसमें देखो which two vertices are adjacent. So पहले मैं सारे vertices का आपको यहाँ पेयर लिख देता हूँ, ठीक है. So first there is 0, 1, 0, 2, 0, 3. Then we have 1, 2, 1, 3. Then we have 2, 3. Yes, I think this is what we have. Okay. ठीक, तो हमने सारे जो है जितने भी फोर थे उनके हमने यहाँ पे पेयर लिख दिए. अब लेट्स सी कौन कौन से पेयर हमारे एडजेसेंट है, कौन कौन से वर्टिसेस हमारे एडजेसेंट है. हाउ वी कैन चेक? व्हाट आई टोल्ड यू, two vertices are adjacent if they have a edge between them. So first let's talk about 0, 1. This is 0, this is 1. Is there any edge between them? Yes, there is edge. So means that is adjacent. 0, 2. I'm checking for. No, 0, 2. This is 0, this is 2. Yeah, there's edge. It is also. This is 0, this is 3. This is 0, this is 3. There is an edge between them. It is also. This is 1, this is 2. This is 1, this is 2. There is an edge between them. It is also. It is adjacent. Okay. Now 1, 3. So 1 is there, 3 is there. This is 1, this is 3. No. There is no edge between 1 and 3. पाथ है, देखो पाथ डिफरेंट चीज है कि यहाँ से आप जाओगे तो आपको 3 मिल जाएगा, वो एक डिफरेंट चीज है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. पर एडजेसेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल अगल बगल, एडजेसेंट. ओके, तो वो नहीं है, इट इज नॉट एडजेसेंट. फॉर 2, 3, देखो 2 और 3 के बीच में कोई पाथ नहीं है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट एडजेसेंट. दिस इज हाउ वी फाइंड वेदर graph is adjacent or not. Okay, is adjacent or not. This is how we can find it. So now let's talk about the next thing what we will do. Okay, so the next thing is path. Okay, how we can find that if there is a path between two vertices or not. Okay, so let's talk about path, that what is a path. Okay, great. Okay, so what is a path? Let's talk about path. So path is basically a way or a connection between two vertices. Let's say हम लोग अभी vertices 1 पे हैं, हमें we have to find path from vertices 1, vertex 1 to vertex 3. So what is the path to reach from vertex 1 to vertex 3? That is what the path is. Sorry. So we have to start from 1. You will first go to 0, then you can go to 3. अब डायरेक्ट 1 से 3 नहीं जा सकते, बिकॉज वी नो कि 1 से 3 के बीच में कोई भी डायरेक्ट वर्टेक्स नहीं है, नॉट डायरेक्ट एज नहीं है. और भी पाथ हो सकते हैं, जस्ट लाइक 1 से 2 जाओ, then 2 to 0, then 0 to 3.
बट यूजुअली वी फाउंड शॉर्टेस्ट पाथ, कि सबसे छोटा पाथ कौन सा, जो कि ये है। ठीक। इसी तरीके से किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। लेट्स राइट फॉर 2 से 3, इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम 2 to 3, तो क्या पाथ होगा? तो 2 से पहले हम लोग 0 जाएंगे और 0 से 3 जाएंगे। एक हो सकता है 2 से 1 जाओ, 1 से 0, देन 0 से 3। कोई इसका कोई मतलब नहीं, वो ये वाला पाथ में लिया जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ऐसे घूम के हो जाना। So that is what the path is defined in how a path is defined in a graph. So we have discussed about vertex adjacent, that what is the adjacent vertices. If two vertices have a edge between them, they are adjacent, and a path can be calculated. It's not like you always have a path. Let's talk about this directed graph. So let's say कि अगर मैं बात करूं इस डायरेक्टेड ग्राफ में कि आपको लेट्स से 1 से 3 जाना है, लेट्स से, तो क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, बिकॉज यू विल सी दिस इज 1, और 1 से कहीं भी जाने की एज नहीं है। देयर इज अ एज जो कि 0 से 1 आ रही है, देयर इज अ एज जो 2 से 1 आ रही है, पर 1 से कहीं जा रही हो ऐसी कोई भी एज नहीं है। तो हम लोग 1 से 3 का कोई भी पाथ नहीं होगा। बट इफ यू विल टॉक अबाउट पाथ फ्रॉम 2 to 3, yes it is, because we can move from 2 to 0, there is a edge between them, और फिर हम लोग 0 से 3 जा सकते हैं, वहां भी एज है उस तरफ, उस डायरेक्शन में बेसिकली। तो डायरेक्टर ग्राफ में आपको जो डायरेक्शन होती है एज की, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन क्या है एंड डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती है। अगर आप एज को एज अ ये लिख रहे हो लिस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा जो जो एज है उसमें कितना कितना है। ओके, ग्रेट। तो दिस इज व्हाट द ग्राफ टर्मिनोलॉजी इज। मैंने पढ़ा एडजेंसी, ये एडजेसेंट, एडजेसेंसी में क्या होता है कि जो दो वर्टेक्स हैं उनके बीच में एक एज होनी चाहिए जो उनको जोड़ रही हो, कनेक्ट कर रही हो। पाथ क्या होता है? अब सीक्वेंस ऑफ एजेस दैट अलाउ यू टू गो फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी इज अ पाथ। तो अगर आप वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी जा पा रहे हो, दैट मीन्स उसके बीच में एक पाथ है। एंड द थर्ड इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ मैंने आपको पहले बता दिया, द एज इन सच अ ग्राफ रिप्रेजेंट बाय एरोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द एज। तो एरोज होती है जो आपको डायरेक्शन बताती है एज का, दैट इज व्हाट द डायरेक्टेड ग्राफ इज, दैट इज द डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, ग्रेट। So till now we have discussed about that what is a graph, okay, and the complete terminology of a graph, how graph is defined, how graph can be expressed using uh, uh, vertices and edges. Okay, what is the terminology of a graph, or what is a directed graph, what is an undirected graph. This is all what we have discussed. Okay, now let's talk about graph representation. That how a graph is being represented. How a graph is being represented. So for representing a graph, I will use, let's use this particular graph only. So using this particular graph, we'll understand how we can represent a graph. How we can represent a graph. So let's see. This is a graph. There are two ways to represent this graph. As I told you that to write a graph, we have to read our vertices and the edges. But that is not a feasible thing. Easy नहीं होता है वर्टिसेस और एजेस के फॉर्म में लिखना। और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तब हमें ग्राफ को इस फॉर्म में नहीं दिया होता है, तब हमें ग्राफ किसी और फॉर्म में ही दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, लेट्स सी कि वो कौन सा टाइम होता है, वो किस तरीके से हमें ग्राफ दिया जाता है। ठीक, तो लेट्स नाउ डिस्कस दैट थिंग। ओके, तो a graph is basically which is represented, a graph is something which is represented two ways. First is called, you will see here, adjacency list and matrix. There are two ways to represent a graph. How we can represent a graph.
As I've told you, which two nodes are adjacent. This is a very important thing. These both the representation. अगर हमें ये पता हो कि कौन से दो वर्टिसेस के बीच में एज है, तो वही तो ग्राफ हुआ. हमें बताओ कितनी, पहले तो बताओ कितनी वर्टिसेस हैं. द फर्स्ट थिंग, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर. एंड द सेकंड थिंग, दैट किन किन वर्टिसेस के बीच में हमारे पास एज है. अगर हमें ये चीज पता हो तो हम लोग इजीली एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन इजीली रिप्रेजेंट अ ग्राफ. Okay, and that is what we are going to do here. That is what we are going to do here. Great. So let's see this thing. ये सब कैसे करेंगे, ठीक. So you will see one thing here that ये हमारे पास चार वर्टिसेस है. पहले समझते हैं adjacency matrix. I call it AM and AL. So let's talk about AM of a graph. How we can create a AM of a graph. So for AM, for a matrix, it's called a matrix. So first of all, what we will do, we will create a matrix of it. A matrix for that particular graph. Let's create it. Okay. So what is the size of the matrix? You will see that here the value of V is 4. V means how many vertices are there? Number of vertices. As I told you, to represent a graph, we need two things using this. एक तो आपको चाहिए होगा number of vertices, कितनी vertices हैं, और दूसरा आपको चाहिए होगी एक मैट्रिक्स. अगर आपको AM फॉर्म में ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले आ गया एक नंबर ऑफ ग्राफ. आपको V इंटू वी मतलब जितनी वर्टिसेस होंगी उतने ही साइज का आपको एक मैट्रिक्स चाहिए होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. Let's create a matrix of size 4 into 4 on. ठीक है. अब जो वर्टिसेस हैं मैं यहाँ पे लिख दूं 0 1 2 3 0 1 2 3. This is our matrix. This is our adjacency matrix. Okay. Now how we will fill values in this matrix and how that values will help us to know what and how a graph is. What a graph is and how a graph is. Let's see this. So you will see this thing here. You will see one thing here. Key. We have this particular thing 0 1 2 3. This particular thing is given to us. Okay. Now let's see this thing, how it is basically done. So देखो, अब 0,0 फर्स्ट है 0,0. so obviously 0,0 जो खुद के बीच में वर्टिस नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1 तब जाएगा जब हमारे किसी दो इंडिसेस के बीच में, किसी दो एजेस के वर्टेक्स में एज होगी, तब हम लोग वहां पे 1 देंगे. अदरवाइज हम लोग वहां पर 0 देंगे. तब हम लोग वहां पर 1 देंगे, अदरवाइज हम लोग वहां पर 0 देंगे. अगर किसी दो एज के बीच, दो वर्टेक्स के बीच में एज होगी, तो हम लोग उस प्लेस पे 1 देंगे. ठीक. यू विल सी हियर कि फर्स्ट इज 0,3. 0,3 के बीच में एक एज है, तो मतलब दिस इज 0, दिस इज 3, यहाँ पे हमने 1 दे दिया. एंड सिमिलरली ये दिस 0, दिस इज 3, यहाँ पे 1 दे दिया. इसका रीजन क्या है कि 0,3 भी है, 3,0 भी है. इट्स अ अनडायरेक्टेड ग्राफ ना, दोनों में हमने 1 लिख दिया, 0,3 में भी और 3,0 में भी, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में. ठीक है. नेक्स्ट इज 0 2. so for 0 2 1, for 0 2 1, not 2 1. so 2 1 and 2 1 दोनों हमने 1 लिख दिया. नाउ 0 1, 0 1 and 0 1. तो जितने भी हमारे पास वर्टेक्स सीरीज में एजेस थी वहां हमने 1 लिख दिया, बाकी सब जगह हम लोग 0 लिख देते. ठीक. हम लोग 0 लिख देते हैं. अब देखो, अब अगर हम लोग इस ग्राफ को डिलीट भी कर दें तो सिर्फ ये मैट्रिक्स हमें बता देगी कि ये ग्राफ क्या होता है. लेट्स सी हाउ. लेट्स सी हमें ग्राफ ना बताओ, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ग्राफ नहीं दिया होता है. हमें ये एडजेंसी मैट्रिक्स दी होती है और हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस दी होती है. और बेसिक नंबर ऑफ वर्टिसेस तो उसका साइज का इक्वल होगा. ठीक है. तो देखो इसका साइज 4 है, तो इसका मतलब कि 4 नोट्स होंगी, तो हम लोग 4 नोट लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4 नोट्स लिख दिया. 1 0 से है ना, 0, तो 0 1 2 3. हमने नॉर्मली 4 यहाँ पे नोट्स लिख दिए. ठीक है. अब देखो 1 कहाँ कहाँ पर. 1 है 0 1 के बीच में, तो 0 1 के बीच में एक
अब 1 है 0 2 के बीच में, 0 2 के बीच में भी एक आ गया, 0 3 के बीच में भी है, 0 3 के बीच में भी आ गया। ठीक, अब 0 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में भी 1 है, देखो 1 और 2 के बीच में भी 1 है, तो 1 और 2 के बीच में भी एक एज आ गई। अब है 0 और 3 के बीच में हो गया, आई थिंक हो गया। ये आपका ग्राफ बन गया, ये वही ग्राफ है, यू विल सी यही ग्राफ है। अगर देखो आप लोग 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, 0 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, वही ग्राफ यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिया गया। ठीक है, ग्राफ तो वही है, थोड़ा हमने अलग तरीके से ड्रॉ कर दिया। दिस इज हाउ वी बेसिकली represent a graph in the form of a adjacency matrix, and similarly adjacency matrix used again create a graph. इस तरीके से हम सारे फिनोमेना को करते हैं। So I hope this concept is clear. Now the second is, जो ज्यादा बोला जाता है, जो ज्यादा पूछा जाता है एक्चुअली में, it is most used, ये मैट्रिक्स कम यूज होती है। The second is adjacency list. Okay, adjacency list is given. अब देखते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। How graph can be represented in the form of adjacency. So let's see this thing. Let's take have a graph. Okay, this is a graph. Now let's see this thing. In this particular graph, if you will see, in this particular graph, if you will see that what we have 4 vertices, as I told you. Before doing anything, we first of all want 4 vertices are there, so P will be 4. Now what is the list? So basically what we do in JavaScript, we create different maps. So I have written a code of it also. You will see a code of it where adjacent, that code is of adjacency list only. Okay? So where I have created a map, and in this map each you will see I am adding the vertex, and for each vertex I am creating a key value pair where key will be the value of that vertex, and value will be an empty array. Okay, so what I will do, guys, because there are 4 vertices, what I will do, I will create a map where there will be 4 values. The first will be 0 and a empty array, 1 and a empty array, 2 and a empty array, 3 and a empty array. ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि 2 से, देखो ये एम्प्टी एरे में क्या आएगा, एम्प्टी एरे में वो नंबर्स आएंगे जो बताएंगे कि 2 से हम लोग कहां पर डायरेक्ट एज है, 2 से या 0 से कहां पर डायरेक्ट एज है, 1 से कहां पर डायरेक्ट एज है. इट विल टेल अस द डायरेक्ट एज फ्रॉम अ पर्टिकुलर. तो लेट्स से फर्स्ट एज उन्होंने हमें बताई है वो है 0 से लेके 1, एंड दिस इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ, मतलब 0 से 1 में भी होगी, 1 से 0 में भी होगी. तो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग क्या करेंगे, 0 से 1 से लेके एक एज है, तो हमने 0 का जो वैल्यू थी मैप में उसमें हमने 1 डाल दिया, और 1 से 0 में भी है तो 1 के आगे हमने 0 डाल दिया. ओके, सिमिलरली अब 0 से 2 था तो 0 के आगे 2 डाल दिया और 2 के आगे 0 डाल दिया. भाई 0 से 2 के बीच में एक एज है. अब 1 से 2 था, 1 के आगे 2 डाल दिया और 2 के आगे 1 डाल. अब 0 से 3 था तो 0 के आगे 3 डाल दिया और 3 के आगे 0 डाल दिया. दिस इज योर एडजेसेंसी लिस्ट. इस लिस्ट के थ्रू आप पूरे कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग दिस सिंगल लिस्ट ओनली, यूजिंग दिस सिंगल लिस्ट. ठीक है, हम लोग उसका कोड भी समझेंगे, डोंट वरी, हमारे पास इसका पूरा कोड है, हम उसका पूरा कोड समझेंगे, उसको रन करेंगे, डोंट वरी. ओके, समझ में आएगा. लिस्ट को मैंने लिस्ट का कोड लिया बिकॉज लिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट और उसको ज्यादा पूछा जाता है. ग्रेट. So this is how you represent a graph using a adjacency. अब इसको मैं और आपको दिखाऊंगा एक चीज, तो कैसे रिप्रेजेंट, इस तरीके से लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है. ये 0 है तो 0 के बाद अगली नोट क्या है, 1 है, और 0 के साथ 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है. इस तरीके से आपको पता लगता है कि 0 के साथ कौन कौन से नोट्स कनेक्टेड है. सिमिलरली 1 के साथ क्या कनेक्टेड है, 0 2 कनेक्टेड है, 2 के साथ 0 1 कनेक्टेड है, 3 के साथ 0 कनेक्टेड है,
और सिमिलरली लोग हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। ओके, अब एक काम करते हैं को डिलीट कर देते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट द ग्राफ यूजिंग दिस एडजेसेंसी लिस्ट। इस लिस्ट की हेल्प से हम लोग ग्राफ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी नो दैट देयर आर 4 vertices, so let's create 4 vertices, 0 1 2 3। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। 0 है, 0 की 0 एक ये मैप है, तो 0 इज क्या की, और उस की के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यूज है 1 2 3, मतलब 0 के साथ 1 2 3 तीनों के साथ एच है, तो 0 के साथ 1 में हो गया, 2 पे भी हो गया, 3 पे भी हो गया। ये बता दिया हमें इस एडजेसेंसी लिस्ट में। अब 1 है, तो 1 को 0 2 के साथ एच है, तो 1 की 0 के साथ पहले से 2 के साथ बना दो। सिमिलरली 2 की 0 1 के साथ है, जो कि पहले से बनी हुई है 0 1 के साथ, और 3 की 0 के साथ है, जो पहले से बनी हुई है। दिस इज योर फाइनल ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, एंड दिस इज योर adjacency list. This is how you have created a graph using this list. तो इस तरीके से आपको लिस्ट दी होती है और आप उसके थ्रू एक ग्राफ को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ अ ग्राफ इज इम्प्लीमेंटेड, दिस इज हाउ अ ग्राफ पार्ट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज रिप्रेजेंटेड एज adjacency list. This is how a graph is represented as adjacency list. Okay, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे। सो वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स आल्सो, हाउ लेट्स से ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ, how we can traverse through a graph. We have different techniques like BFS, we have DFS, and that I will cover in the later video. For this video, this was the thing that we have discussed, that what is a graph, how we can represent a graph, what is the terminology of a graph, directed graph, undirected graph. And now let's see how we can represent a graph, how we can represent this particular graph, which is here. So now let's discuss about this particular program. Okay. So as we create constructor for nodes, when we implement stack for linked list, you can see here for this stack also हमने यहाँ पे constructor create किया था items और max size के लिए, ठीक है। Similarly for this graph also we have a constructor here. तो मैंने आपको बोला था for a adjacency list what we want, हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितनी वर्टिसेस हैं उस पर्टिकुलर ग्राफ में। This is the first thing that we want. And second thing is adjacency list. The list is the second thing, which is nothing but a map. क्योंकि एक मैप होता है, मैंने आपको बताया था कि मैप के थ्रू हम लोग लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैप कैसे कि अगर वैल्यू की अगर 0 है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यूज हैं, मतलब कितनी एजेस उससे कनेक्टेड है, कितने एजेस के कितने नोड्स के बीच में एज है। तो सिमिलरली वी विल हैव डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो अब देखो ऐड वर्टेक्स फंक्शन। ऐड वर्टेक्स फंक्शन क्या है, आप अगर आपको कोई नया वर्टेक्स ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे। तो अगर आपको कोई नया वर्टेक्स ऐड करना है तो आप बेसिकली आपके मैप में एक नई की वैल्यू पेयर को सेट कर दो। जस्ट लाइक यहाँ पर उन्होंने वी कॉमा एक ब्लैंक एरे को सेट किया है। ओके, ये उन्होंने यहाँ पे सेट किया हुआ। अभी हम लोगों ने लास्ट में इसको रन भी करेंगे, देखेंगे कैसे चल रहा है, ठीक। नो वरीज, लास्ट में इसको पूरा रन करेंगे, ठीक। ये होता है ऐड वर्टेक्स, हाउ यू कैन ऐड अ वर्टेक्स, ठीक है। हमने बेसिकली लिया, हमने हमारे ग्राफ में सॉरी मैप में एक नई की वैल्यू पेयर को सेट कर दी, नए की वैल्यू पेयर को सेट कर दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी कैन ऐड अ एज। तो हम लोग यहाँ पर अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो हम लोग ये ना रखते, इसको पार्ट को हम लोग हटा देते, ये वाला पार्ट जो था। बट बिकॉज ये हम लोग अनडायरेक्टेड, हम लोग दोनों की बारे में बात कर लें, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर 1 और 2 के बीच में एक एज है, इसका मतलब कि 0 के आगे भी 1 आ जाएगा, मतलब 0 के जो 0 मैप होगा उसके वैल्यू में भी 1 पुश हो जाएगा, और सॉरी 1 2 के बीच में, 1 में भी 2 पुश हो जाएगा। देखो देखो 1 2 के बीच में है ना एज, तो 1 से 2 में भी देखो 2 पुश हो रहा है, और 2 में भी 1 पुश हो रहा है, दोनों चीजें हो रही थी, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट में हम लोग जो वी होगी वर्टेक्स, उसमें हम लोग डब्ल्यू को पुश कर देंगे और डब्ल्यू में हम लोग वी को पुश कर देंगे, बिकॉज ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर डायरेक्टेड होता इसका मतलब कि वी से डब्ल्यू जा सकते हैं पर डब्ल्यू से वी नहीं आ सकते, तो हम लोग इसको जो है कमेंट इसको ना करें, सिर्फ इस चीज को रखें, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब देखते हैं हाउ वी कैन प्रिंट अ ग्राफ।
तो ग्राफ प्रिंट करने के लिए देखो बेसिकली कैसे होगा। अब ग्राफ हम लोग कैसे प्रिंट करते होंगे, हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्रिंट करेंगे, सिर्फ ये दिखाएगा कि कैसी एजेस है, कितनी एजेस है और कहाँ कहाँ पर एजेस हैं, हम लोग सिर्फ ये प्रिंट करके ग्राफ को प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, जीरो है, जीरो के आगे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, वन है, वन के आगे जीरो है, टू है। दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट दैट। इस तरीके से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो लेट्स सी, अब ये हम लोग जो प्रिंट कैसे कर रहे हैं, ये जब हम लोग प्रिंट करेंगे तब समझेंगे, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करें। हमने आगे क्या किया, एक पहले तो सबसे पहले हमने ग्राफ को इनिशियलाइज कर लिया है, और उस ग्राफ की में कितनी वर्टिसेस हैं, आप बोल रहे हैं आपको 6 वर्टिसेस हैं उस ग्राफ में। देयर आर 6 वर्टिसेस इन द ग्राफ। अब हमें ऐड भी करनी पड़ेंगे ना वर्टिसेस, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ए बी सी डी ई एफ करके हमने यहाँ पर 6 वर्टिसेस यहाँ क्रिएट कर लिए, ठीक है। एक काम करते हैं कि इनको हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। 6 वर्टिसेस है, ए बी सी डी ई एफ। अभी हमने 6 वर्टिसेस यहाँ पे क्रिएट कर लिए, इनके बीच में कोई भी एज हमने अभी नहीं क्रिएट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एड एज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक एज आ गया, ठीक। ए और बी के बीच में एक एज आ गया। नाउ ए एंड डी, ए और डी के बीच में एक एज आ गया, ए एंड ई, ए और ई के बीच में एक एज आ गया। बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में एक एज आ गया, ठीक है। डी एंड डी, तो देयर इज एज बिटवीन डी एंड ई। बिकॉज इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, वी आर अज्यूमिंग कि कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक। ई एंड एफ, तो ई एंड एफ के बीच में भी एक एज आ गया है। E and C, so there's an edge between E and C, and C and F, so there's an edge between C and F. This is the graph which is given to you. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ग्राफ के लिए प्रिंट कर देंगे इसका एडजेसेंसी लिस्ट। देखते हैं क्या होगा, पहले हम लोग काम करते हैं, खुद से इसको लिखते हैं, फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। पहले से खुद से इसको लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसकी एडजेसेंसी लिस्ट लिखें यहाँ पर साइड में, तो हाउ इट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल द एजेस। तो यहाँ पे कितने एजेस हैं, ए सॉरी नोट्स वर्टिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑल द वर्टिसेस। अब उस वर्टिस के करस्पॉन्डिंग कितनी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो मैं लिखना होगा, मतलब किसके इसके बीच में एज है। तो देखो वन के साथ बी की भी एज है, डी की है, ई की है। देखो तीन एरोज आ रहे हैं इसे, तीन हो गई। बी के साथ एक तो ए की है और एक सी की, इधर एक इधर। सी के साथ एक बी है, एक ई है और एक एफ, तीन जा रही। डी के साथ एक ए है और एक ई है। ई के साथ चार एजेस हैं, देखो एक हो गया ए, एक हो गया सी, एक हो गया डी, एक हो गया एफ। एफ के साथ दो हैं, एक है सी। दिस इज आर एडजेसेंसी लिस्ट। देखते हैं ये ग्राफ क्या, ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करता है, लेट्स लर्न इट। देखो इसने भी क्या प्रिंट किया, ए बी डी ई, ए के साथ बोल रहा है बी डी ई वाली एज है, बिल्कुल सही। बी ए सी, बी के साथ ए और सी है, सही। सी बी ई एफ, सी के साथ बी ई एफ है, ग्रेट। डी ए ई मीन्स डी के साथ ए ई है, ओके। ई ए डी एफ सी, तो ई के साथ ए डी एफ सी है, सही है। ई एफ के साथ ई सी है, एफ के साथ ई और सी एनीथिंग, मीन्स दिस इज हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर, ठीक है, यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एडजेसेंसी लिस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ मैप हम लोग स्टोर कर रहे हैं। हमने हमें जब एक कोई इंडिसेस ऐड करनी थी, तो हमने बेसिकली बस एक की वैल्यू पेयर सेट कर दिया हमारे मैप में, ठीक है, जिसका वैल्यू उस वर्टेक्स के वैल्यू के इक्वल था, और अभी की मतलब, और वैल्यू अभी एक एम्प्टी एरे थी, मतलब अभी कोई भी उसके साथ एज नहीं है, या मान के चल रहा है कि उस नया वर्टेक्स के साथ में भी कोई भी एज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऐड एज, हम लोग यहाँ पे एक एज ऐड करेंगे, ठीक है, विच इज हम लोग हमारी जो मैप होगा उसकी एक पर्टिकुलर की के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू सेट कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गेट क्या देगा, गेट देगा कि पॉली एरे उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग कौन सी एरे है,
और उस एरे में हम लोग नई एज पुश कर देंगे भाई, हाँ उन दोनों के बीच में एक एज है, एक नई वर्टेक्स पुश कर देंगे। ओके, अब देखो प्रिंट को कैसे कर रहे थे, प्रिंट हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हमने पहले गेट कीज ले ली, तो हमने सारी की ले ली हमारी मैप की, ठीक है, ये मैप है ना हमारा, उसकी हमने सारी की ले ली, और उस की के थ्रू हम लोग जस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं यूजिंग अ फॉर ईच लूप। तो हमने एक पर्टिकुलर, मान लो हमारे पास जो की थी वो थी आई, तो हमने गेट आई कर लिया। गेट आई मतलब क्या है कि आई के करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज थी आई की करस्पॉन्डिंग, वो हमने गेट कर लिया और हमने उनको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जितनी भी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग थी आई की हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। दिस इज व्हाट हाउ वी आर प्रिंटिंग अ ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ग्राफ को पूरा इंप्लीमेंट कर रहे थे। दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ, ओके ग्रेट। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग इजी। हम लोग एक पहले तो हम लोग जब यहाँ पर मैप की जगह मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे, एंड फिर उस मैट्रिक्स में हम लोग जब यहाँ पर हम लोग कोई एज को ऐड करेंगे ना, तो हम लोग उस मैट्रिक्स की वैल्यू को 1 कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो वी हैव लर्न अबाउट ग्राफ, एंड इन ग्राफ हमने क्या क्या पढ़ा कि ग्राफ क्या होता है, हाउ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स। सो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो रियल वर्क एग्जांपल होते हैं ग्राफ के। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस होती हैं, उनके बीच में एज होता है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से, ठीक है। उसके अंदर देखा कि हम लोग ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ग्राफ की टर्मिनोलॉजी पढ़ी, एडजेसेंट, पाथ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, विच इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पर। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ हमारे पास कुछ ग्राफ के ऑपरेशन हैं, जैसे कि चेक इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द ग्राफ, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग इन अ ग्राफ। हम लोग ग्राफ में कैसे सर्च कर सकते हैं, और वी कैन आल्सो से इट ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ, तो ग्राफ का ट्रैवर्सल होता है। एंड और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं ग्राफ के, जो कि हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। अगले वीडियोस में हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, लाइक डाइक्स्टर एल्गोरिथम, वो भी पढ़ेंगे, जिससे हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सके दो एजेस के बीच में, ठीक है। We will learn different algorithms like BFS, DFS also. That we will cover in the next video. For this video, we have discussed this particular thing. Thank you. I hope that आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। Thank you.